Hello friends, welcome back. I Vaishnavi Patil and we are going to analyze the question paper of CDS 2. We have done with part 1 in which we have done with question number 1 to 60, and in this part we are going to do from question number 61 to 120. Okay, so instead of wasting more time, we'll immediately start and complete all the other 60 questions which are remaining, and you guys please check and write down whatever questions or whatever mistake you have done and what would be the solution you have understood in this lecture. Okay, so let's begin. So in question number 61, each of the following sentence in this section has a blank space with 4 options. Select whichever preposition, or now what they are asking for, they are asking for preposition or determiners you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. If I see, question is, I saw Nandini dash she was waiting for the bus. मैंने नंदिनी को देखा जब dash वो रुकी थी बस के लिए. तो during तो नहीं होगा, during she was waiting, no, not that time. While she was waiting, yes, while is right. क्या आएगा? I saw Nandini while she was waiting for the bus. So answer is brow. On तो नहीं होगा, for भी नहीं होगा. So answer is brow. Clear? Next question. This sauce has to be used dash 23rd September. अब by होगा, हाँ हो सकता है. This sauce has to be used for 23rd September. No. Into 23rd, ये क्या होता है भाई? Into और for क्या होता है? This sauce has to be used with 23rd, मतलब 23rd लेटर लो और sauce लो. With 23rd बोला ऐसे तो होता नहीं है, right? So by 23rd. So answer is alpha. Clear? Next, I'll be working on this report dash 10:30 p.m. अब क्या हो सकता है? during 10:30 p.m. is wrong. I will be working on this report during 10:30 नहीं बैठ रहा है. I'll be working on this report since नहीं, since भी नहीं होता. I'll be working on this report dash 10:30 p.m. until, till and until is same. till या फिर until is same. तो ठीक है, तो until आएगा. Answer is Charlie. Clear? In 10:30 p.m. is also wrong. So answer is Charlie. Next question. I have dash energy left to complete the work. I have dash energy left to complete the work. Now tell me what would be the answer. I have dash energy left to complete the work. Few energy, many energy नहीं होती है. अगर I have many energy left to complete the work, मेरे पास बहुत एनर्जी बाकी है, नहीं. सेंटेंस ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पर मैनी नहीं आएगा, कम रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो मैनी इज रॉन्ग. आई हैव लिटिल एनर्जी, आई हैव एनी एनर्जी. एनी क्या होता है? दिस इज अगेन रॉन्ग. अब डाउट है फ्यू और लिटिल में. प्रॉब्लम इज इन फ्यू एंड लिटिल. अब किसको क्या यूज करें? वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी विच इज वॉट? अनकाउंटेबल. yes, which is uncountable, right? You can't count the energy जब तक कोई स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता. लेकिन जब बोलते हैं पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी एनर्जी थी और कितनी खत्म हो रही है? नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी देन इट इज अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल है तो मैंने बताया था लेक्चर के बीचों बीच, कहा था मैंने कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू में बहुत सी चीज़ें काउंटेबल होती है एंड अनकाउंटेबल होता है लिटिल में. क्लियर? फ्यू किस में रहता है? काउंटेबल, और लिटिल अनकाउंटेबल. सो दिस इज द थिंग. क्लियर? एनी डाउट? नो? गुड. सो यहाँ पर मुझे बताना, एनर्जी अगर अनकाउंटेबल है तो फ्यू का आना चांस ही नहीं है. लिटिल इज योर आंसर. सो आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस. आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस. आई हैड डैश ट्रबल finding the house. Any trouble? No, any is wrong. I had some trouble finding the house. Yes, I have few trouble. Again, you don't know trouble. तो trouble, if we are talking about few, it should be used in uncountable. तो trouble तो आपको पता नहीं, एक trouble है, 2 trouble है, 3 trouble. You don't have any idea, right? तो ये भी चला गया. All trouble.
I had all trouble finding the house. No, again wrong. तो बस एक ही मैच हो रहा था, that is brow. Clear, answer is brow. Next, dash of these officers are very well trained. Dash of these officers are very well trained. कौन से officer? Much of this officer? नहीं. Not of this officer, grammatically Batinera, it's wrong. Most of the officers, most of these officers are very well trained. One of this officer, नहीं. ठीक है, so answer is Charlie. Next question. I don't like going to dash dentist. अब क्या बोल रहा है? I don't like going to these dentist. कौन से? हमें क्या पता कौन से बोल रहा है? हमें क्या करना है? तुम जाओ ना. We don't know about which dentist you are talking about. So these नहीं आएगा. Okay? This will not fit over there. I don't like going to dash dentist. This will not come. I don't like going to an dentist. भाई an आपको vowels में use होता है. Vowels. और dentist का ड जो ये consonant है. ठीक है, AEIOU. अगर ये जो हो, अगर ये सेंटेंस, ये प्रोनाउंसिएशन समझ अगर आ रहा हो तो तभी आपको एन लगाना है, तो ये तो अपने आप चला गया. आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट. सो आंसर इज द, दैट इज चार्ली. क्लियर. नेक्स्ट, they place the African elephant dash their endangered list. They place the African elephant dash their in their endangered. At their तो नहीं होगा. endangered species का एक लिस्ट निकलता है, मतलब जो अभी जिनका जो रेशियो रहता है, द स्पीशीज और क्या बोलते हैं, स्पीशीज का जो रेशियो रहता है बहुत कम हो जाता है. पूरा एक्सटिंक्ट नहीं होता, बट एक्सटिंक्ट के कगार पे होता है. ठीक है, दे आर वेरी सून गोइंग टू एक्सटिंक्ट, ऐसे बोलते हैं, बहुत जल्दी इनका पूरा खत्म हो गया. जैसे चीता, वी हैव राइट नाउ ब्रॉट इट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट. तो अभी तो चीता पूरा एक्सटिंक्ट हो गया था, बट नाउ हम ला रहे हैं यहाँ पर एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी वो पूरी की पूरी लाए हमने साउथ अफ्रीका से. ठीक है, तो एंडेंजर्ड लिस्ट वो रहती है जिस जहाँ पर ना पूरी तरीके से तो आपको वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होती. वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पीशीज आर देयर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स आर देयर. कह रहा है ना कि अफ्रीकन एलिफेंट है, बहुत एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके, so they place the African elephant in their endangered species. So answer is alpha. Next, चलो, question is dash travel industry is changing rapidly. And तो नहीं होगा. I have right now told you कि and कहाँ पर आएगा? And will come before vowel. तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, क्योंकि t is their consonant, right? Consonant. ओके, पता नहीं कौन सा जानवर बन रहा है. ओके, नेक्स्ट, डैश ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग. ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग नहीं. यू आर अवेयर अबाउट, हम डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं. कौन से? कि भाई ट्रैवल इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री? ट्रैवल इंडस्ट्री. सो इफ यू आर डेफिनेटली श्योर अबाउट विच इंडस्ट्री आर टॉकिंग, तो वहाँ पर डेफिनाइट प्रोनाउन, डेफिनाइट आर्टिकल आता है, नॉट प्रोनाउन, डेफिनाइट आर्टिकल, एंड दैट इज द. सो आंसर वुड बी चार्ली. यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट्स सी. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शी इज डैश MP फ्रॉम राजस्थान. शी इज डैश MP फ्रॉम राजस्थान. अब यहाँ पर MP तो लिखा है, याद रखो, बट इसका प्रोनाउंसिएशन इज MP, विच इज ए कम्स फर्स्ट. ए है, वॉवल्स में आता है, वॉवल्स में आता है ना, AEIOU. ठीक है, अब कह रही हूँ मैं MP, बट इमीडिएटली आई एम नॉट सेइंग MP, नो, राइट. मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन A से होता है, राइट. तो इसके पहले एन आएगा. सो आंसर इज एन. शी इज एन MP फ्रॉम राजस्थान. ओके, सो आंसर इज चार्ली. ओके, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा. सी, यहाँ पर बहुत चांसेस थे टू स्कोर आउट ऑफ 10 out of 10, बिकॉज आर्टिकल वॉज द थिंग विच वॉज आस्क्ड बाई देम, एंड इट इज़ डैम ईजी. इसमें कुछ था ही नहीं. पहली बात तो सीधा सीधा रूल लगा दो, आपको पता है आंसर इज योर्स. ओके, तो इसमें कुछ ऐसा क्रिटिकल या फिर हार्ड नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया. ओके, एवरीथिंग वॉज देयर टिल योर 10th 8th 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वही था. ठीक है, तो यहाँ पर 10 out of 10 मार्क्स लाना तो इट वॉज डैम ईजी. ओके, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है तो गाइज आई विल से दैट you have to work very hard.
for this subject. Okay, next. Okay, these are our achievements from Cavalier India. आज तक के जितने भी बच्चे यहाँ पर आए, many of them have got selected. Okay, and the experts are working, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ के एक्सपर्ट टू गेट गुड मार्क्स. और जो SSB यहाँ पर हो रही है, मतलब जिसका प्रैक्टिस हो रहा है SSB के लिए, दैट इज़ ऑल्सो very great. Okay, and right now they are serving in armed forces. Many of them have clinched their zenith. Okay, चलो हम क्वेश्चन करते हैं फिर से. Each items in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled as Alpha, Bravo and Charlie. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is Alpha, Bravo and Charlie. If you find no error, your response should be indicated as Delta. Okay, अगर आपको error नहीं दिख रहा, बस ये तो है spot the error. Most favorite 10 questions of CDS and NDA aspirant, spot the error. बहुत खून चूस लेता है ये 10 questions. Okay, everything what happened was because of my action. अब क्या कह रहा है, everything what happened was because of my action. अब ये आपको पता है indefinite है, right? yes, तो indefinite के बाद हर बार that लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको that नहीं दिख रहा है, यहाँ पर what दिया है. ठीक है, so everything that happened was because of my action. so आंसर क्या आपका Bravo. okay, clear? If you don't know about this thing, please make sure you write somewhere. Okay, next. Some people could write well while others didn't. Didn't क्या होता है, यहाँ पर अगर could दिया है तो यहाँ पर couldn't आना चाहिए ना, could not. Some people could write well while others could not. तो यहाँ पर couldn't होगा, ना कि didn't. couldn't होगा. So answer is Charlie. Why could? Because यहाँ पर दिया है could, इसलिए. ठीक है, अगर वहाँ पर some people don't write well while others didn't ऐसा होता तो भी grammatical यहाँ पर mistake हो ही जाता, but would भी होता तो wouldn't होता. Clear? Whatever is there over here, again comparatively वहाँ पर वैसे आएगा. Okay, next. The police are working hard until they are able to arrest the culprit. The police are working hard until they are able to arrest the culprit. अब तक culprit पकड़ा गया नहीं है, right? He is not arrested. मतलब आपने R कैसे लगा दिया यहाँ पर? The police are working hard. तो police will work hard होगा ना भाई. So यहाँ पर R नहीं will होगा, because अभी तक तो culprit पकड़ा गया नहीं है. ठीक है, अगर पकड़ लिया जाता तो then that the sentence was right, आगे change होता. लेकिन culprit अभी पकड़ा गया नहीं है, पुलिस वर्क करने वाली है to catch the culprit. ठीक है, तो if it is in this manner, then वहाँ पर will आएगा, ना कि R. So answer is alpha. Answer is alpha. जितना हो सके उतना अपने friends जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, the one who are preparing for this exam, all the aspirants, आप शेयर कीजिए ये लिंक, because it is going to help your friends, right? और अगर दोस्त के काम ना आया तो फिर क्या आया? Okay, so next question. Since he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about their culture. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Since he was going to live in South Korea for some times, he thought he should learn something about their culture. About their culture मतलब यहाँ थोड़ी लोगों के बारे में बोल रहे हैं, हम तो उनके कल्चर के बारे में बोल रहे हैं. अगर कल्चर के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर their कैसे आएगा? यहाँ पर it's about culture. Okay, यहाँ पर क्या आएगा? It's आएगा, ना कि their आएगा. So since he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about its culture. Clear? So answer is Charlie. Clear? ये spot the error ऐसा लगता है कि शायद से whenever you read the sentence you feel first sentence जब question में पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कुछ error है ही नहीं, right? So I will suggest that instead of reading and wasting time for twice and thrice, once you read the first question, if you are not getting, what you do is immediately shift on third question instead of second.
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना, आपको अपने आप समझ, अच्छा यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है, अच्छा देन गो बैक एंड रीड दैट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, यू विल बी इजीली सॉल्विंग दैट फर्स्ट टू. ओके, तो आप जानबूझ के गलती मत निकालना, अगर है तो है, नहीं पता है तो डोंट मार्क इट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होनी है. ओके ठीक है, तो यहाँ पर इट्स आएगा. The company's phenomenal success are largely due to the new director and his team. अच्छा, the company's phenomenal success are largely due to the new director and his team. बताइए यहाँ पर क्या गलत है, एनी आइडिया? पहली बात तो phenomenal success के बाद क्या लिखा है उसके ऊपर ज़रा ध्यान रखना. ओके, what they are saying, the company's phenomenal success are largely due to new director and his team. अब क्या कह रहा है कि कंपनी का फिनोमिनल सक्सेस मतलब इट इज अगेन व्हाट, कलेक्टिवली एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे, राइट, और उसका ही सक्सेस कह रहे, तो यहाँ पर आर क्यों आना है, यहाँ पर इज आएगा, इज लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम. मैंने ये कलेक्टिव प्रोनाउन के रूल में प्रोनाउन में ये पढ़ाया है. ओके, so answer is brown. Next, I am owning 2 houses in Bengaluru. I am owning क्या होता है, I own होता है, मैंने सुना है आज तक तो. I am owning 2 houses in Bengaluru. Okay, if I say this line in front of my mom, okay mom, I am owning 2 houses, my mom would like, what is owning? I own is something which is going to come there. Okay, so I own, so this is wrong. So answer is alpha. Clear? Answer is alpha. I own 2 houses in Bengaluru. Next, a boy was injured in the accident and was taken on to hospital. एक तो होता है into, एक तो होता है in hospital. ये on to क्या होता है भाई? So ये तो सबका right हुआ होगा, no doubt in that. यहाँ पर on to नहीं, into होगा. ठीक है, यहाँ पर on to नहीं, into होगा. A boy was injured in the accident and was taken into the hospital. Clear? So answer would be Charlie. Mr. Malhotra is a historian whose books have won international acclaim. चलो बताइए. Mr. Malhotra is a historian whose books have won international acclaim. अरे whose क्या होता है, मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं ये वर्ड, हो क्या होता क्या. इफ़ यू वांट टू सेपरेट दिस तो इसको कैसे पढ़ते पता है, who is. अब फिट करो वहाँ पर. Mr. Malhotra is a historian historian whose book have won. तो who is तो फिट ही नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव किस तो आएगा ही नहीं, इट इज रॉन्ग. ओके, who आएगा, या फिर क्या है, whose books have won international acclaim. So answer would be Bravo. Okay, next, I hate it when I break in hives. I break क्या होता है, break कहाँ, नीचे ऊपर साइड में, राइट लेफ्ट. ओके, कहाँ पर ब्रेक है ये भी तो पता होना चाहिए. I hate it when I break out in hives. break out, ठीक है, तो इसका आंसर है ब्रावो. ये बहुत जन गलत क्या होगा या फिर तुक्का मार के सही किया होगा. ओके ओके, नेक्स्ट, either Vikas or his friends is going to cook dinner. Okay, either Vikas or his friends is going to cook dinner. अब याद रखना either और are है, ये either और are, इसके बाद जो होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है यहाँ पर वर्ब क्या आएगा. सो इट शुड बी are, not is. Clear? ये I have told this rule many a times in the class while teaching. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. एक neither nor का था, एक either or का था, एक each other था, एक one another था. ओके, सो दिस रूल वी हैव ऑलरेडी टेकन इन द क्लास गाइज. ठीक है, अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ जाना आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, इट वुड बी वेरी इजी. ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर इज चार्ली. नेक्स्ट, अब बताइए. Each items on this section consist of a sentence with an underlined word followed by 4 words grouped
words or group of words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. बोलते हैं nearest in meaning, सीधा सीधा सिनोनिम दे देते हैं, हम समझ जाते हैं, राइट. सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है सिमिलर वर्ड्स, राइट. मतलब क्या पूछ रहा है, सिमिलर वर्ड्स. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटेकरस. अब कैंटेकरस, अब पहली बात तो अगर इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, फॉर देम हाउ टू सॉल्व. पोलाइट, द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड, ओल्ड तो है लेकिन पोलाइट देखते हैं. इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड मतलब थोड़ा सा सनकी टाइप. ओके. वीक, वीक नहीं. सीरियस, सीरियस तो हो ही नहीं सकता, तो डेल्टा तो चला गया. पहली बात तो ही इज द हेडमैन, तो वो वीक नहीं होंगे, राइट. इफ ही इज अ हेडमैन ही कांट बी वीक. कांट भी नहीं मतलब वो हो भी नहीं सकते, ही माइट नॉट बी वीक ऐसे बोलेगी. ओके. तो वीक तो चला गया. एक पोलाइट है, अगर पोलाइट होते तो फिर दे वुड हैव नॉट स्पेसिफाइड, राइट. इतना स्पेसिफाई करके तो बताते नहीं, तो ये पोलाइट भी चला. इट इज इल टेम्पर्ड, सो आंसर इज ब्राउ. ओके. कैंटेकरस. नेक्स्ट. Okay, I was talking about the faculties of Cavalier India Pune. I would specifically show you the pictures who all are teaching over here, and they are actually the great teachers, and they are expert in their own subjects. If you have any query related to anything, even you can watch the demo classes which are free of cost in offline section. तो आप offline आकर ये class attend कर सकते हैं. It is free. No one is going to ask you anything. आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग, नंबर इज देयर गिवन ऑन द डैशबोर्ड, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. यू कैन हैव अ कॉन्टैक्ट. ओके. एंड दिस इज हाउ आवर फैकल्टी वर्क. हर वीक हमारी टेस्ट होती है. वॉट एवर टॉपिक वी आर टेकिंग राइट नाउ, वी हैव टेस्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक विद इन अ वीक. ओके. सो पढ़ाया, टॉपिक का टेस्ट ले लिया, ठीक है. ऐसे हम पूरा करते हैं एंड उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट लेके विल चेक कहाँ पर क्या गलती हो रहा है एंड व्हाट वाज द मेंटालिटी द स्टूडेंट वाज डूइंग एंड स्टूडेंट वाज थिंकिंग एट दैट टाइम. ओके. तो दिस इज हाउ वी वर्क. Psychological problems amongst the youth can be attributed to the pernicious influence of the internet. ठीक है. Psychological problems among the youth can be attributed to the pernicious influence. अब pernicious मतलब रहता harmful. ठीक है. Pernicious means harmful. So answer is alpha. Next. Our teacher told us not to be verbose while writing. Verbose मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने वाला जो होता है उसको बोलते हैं verbose. ठीक है. वो exaggerate, and exaggerate is there in the option. So answer is A. Okay. Next. The actor narrated the story in a resonant voice. Resonant मतलब एकदम deep, एकदम sharp voice से समझाया. ठीक है. So it is deep. So answer is 4. Resonant क्या होता है? Deep. Okay. Next. They were fed up with his doltish behavior. Doltish behavior मतलब foolish behavior. कि क्या बकवास करते जा रही है तू, ठीक है. How doltish you are, how foolish you are. तो doltish is foolish. ठीक है. तो foolish again it is wise तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको पता भी नहीं what is the meaning of that word, try to relate. They were fed up. Fed up मतलब अगर अच्छा बिहेवियर होता तो fed up होते हैं? बिल्कुल नहीं. मतलब wise तो अपने आप चला गया. क्लेवर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फेड अप हो गए. क्लेवर होती तो फेड अप नहीं होते वो. ठीक है. प्रिकॉशियस भी होती तो फेड अप नहीं होते. तो एक ही बाकी ऑप्शन दैट इज इम्बेसिल. इफ यू डोंट नो द मीनिंग यू कैन इमीडिएटली गो बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट अदर थिंग. ओके. सो आंसर इज ब्राउ. नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In the following item, a word is given followed by 2 suggested meaning. You are required to identify the correct meaning of the word and indicate your choice by using the code that follows. ठीक है. मतलब यहाँ पर एक वर्ड दिए, आपको उसके 2 मीनिंग दिए, आपको चेक करना है whether that meaning match with the word or not. ठीक है. If it do,
then you have options like alpha, that is only one. Okay, यहाँ पर one है, only one, ठीक है. Bravo is 2 only, Charlie is both 1 and 2, and Delta is neither 1 nor 2. ठीक है, तो आपको पहले वर्ड देखना है. फर्स्ट वर्ड इज अनार्चिज्म. ठीक है, अनार्चिज्म वो होता है जहाँ पर गवर्नमेंट बनी नहीं होती. ठीक है, ये वर्ड बहुत फेमस है, बहुत इजी वर्ड था ये. ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड और अथॉरिटी. ठीक है, अनार्चिज्म क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड और अथॉरिटी. इतना पढ़ने के बाद तो आपको समझ गया कि अल्फा तो है. ठीक है, अल्फा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. ठीक है, अब देखते हैं कि आई मीन सेकेंड ऑप्शन है कि नहीं. केओस एंड डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स रिलेट करो ना भाई, गवर्नमेंट है नहीं तो सब मजे से थोड़ी चलेगा, सब बिखरा बिखरा रहेगा, पूरा 6th and 7th हो जाएगा. यस और नो? सो ये दोनों है, मतलब ब्रावो इज योर आंसर. आंसर इज चार्ली. ब्रावो नहीं, बोथ था, बोथ बोलना था मुझे. आंसर इज चार्ली. नेक्स्ट, प्रिस्टिन. अब प्रिस्टिन क्या होता है? प्रिस्टिन मतलब इन द ओरिजिनल कंडीशन, इन द डिफाइल्ड कंडीशन. इसका भी बोथ है, इसका मतलब भी यही है. नेक्स्ट, एनॉर्मिटी. अब एनॉर्मिटी क्या होता है कि एकदम एबॉमिनेबल क्राइम और सिन. एबॉमिनेबल मतलब क्या होता है? वेरी बैड. एबॉमिनेबल मतलब क्या रहता है? वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड क्राइम और सिन. द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव. अल्फा नहीं है. ठीक है, सो आंसर इज ओनली ब्राउ, दैट इज 2 ओनली. नेक्स्ट इज कोटिडियन. ये वर्ड थोड़ा हटके था, बोलते ना, इट वॉज डिफिकल्ट, बट अगेन इट वॉज नॉट दैट हार्ड. अब ने पढ़ा नहीं, मतलब इसमें से कोई मीनिंग एक तो आप करो ही मत इसको, या तो फिर नाइदर वन और टू लिख दो. कोटिडियन, टू क्विट इनएक्यूरेटली, समवन फॉन्ड ऑफ कोटिंग अदर्स. ठीक है, सो दिस इज नाइदर वन नॉर टू. इतना ईजी तो रहेगा नहीं, सो आंसर इज डेल्टा. Okay, next. Okay, I've already discussed about our achievements of Cavalier India Pune. हम देख सकते हैं कि recruitment list जो है, there are many more we have not added over here. and मैंने पहले ही आपको experts के बारे में बता दिए. हमारे बच्चे right now they are giving service in armed forces, in army, navy and air. They are actually doing their work in a very patriotic way. बहुत अच्छे से हो रहा है. Okay, next question. Immolate. Immolate, to kill somebody or self by burning. Immolate is to kill somebody or self by burning. Immolate means to kill somebody or self by burning. To kill somebody or self or animal. नहीं यार, ये तो होता ही नहीं है, बस यही होता है. Only one. Answer is alpha. Okay, answer is alpha. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमाइज. मिनिमाइज का मतलब पता है ना, कंसाइज करना, छोटा कर देना. रिड्यूस समथिंग टू अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री. हाँ जी है ये. रिड्यूस एक्सपेंसेस और द डिग्री ऑफ एनीथिंग और ऑफ एनी एक्टिविटी. हाँ जी ये भी है, तो ये बोथ है. आंसर इज चार्ली. वही कह रहा है ना, रिड्यूस समथिंग और रिड्यूस एक्सपेंसेस. आप कुछ भी रिड्यूस करो, आप समथिंग को कर दीजिए या फिर कोई एक्सपेंसेस खर्चा कर दीजिए. समथिंग इट इज रिड्यूसिंग, दैट मीन्स मिनिमाइज. वी आर नॉट स्पेसिफाइड व्हाट टू मिनिमाइज. तो कुछ भी हो जाए, एक्सपेंसेस हो जाए, फूड हो जाए, कुछ भी हो जाए. ठीक है, रिड्यूस कर रहे हो मतलब मिनिमाइज हो जाएगा. ओके, डीफाई. अब डीफाई क्या होता है? डीफाई मतलब क्या रहेगा? मतलब कि टू ट्रीट समवन इन हाई ऑफिस विथ अटमोस्ट रेवरेंस. नहीं, ये नहीं होता है. वर्शिप और ट्रीट समवन एज अ गॉड. हाँ ये होता है. ठीक है, सो ओनली ब्राउ. नेक्स्ट, रेकॉन्टर. अब रेकॉन्टर, दिस वॉज यूनिक vocab they asked. Okay, but डरना नहीं था. someone who is capable of telling stories in an interesting manner. इसको कहता है somebody who believes in only telling tall tales. नहीं, ये नहीं होता. सिर्फ अल्फा रहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वे से दे एक्सप्लेन द स्टोरी. ओके, सो आंसर इज अल्फा. इमैस्कुलेट. अब इमैस्कुलेट का मतलब रहता है मेकिंग समवन. नहीं, यहाँ पर दोनों भी नहीं है, सो आंसर इज डेल्टा. ओके, आंसर इज डेल्टा. पर्टर्बेशन. पर्टर्बेशन. अब पर्टर्बेशन क्या होता है? पर्टर्बेशन मीन्स मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस. ओके, इसका मतलब होता है मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस. सो आंसर इज अल्फा.
Next, in the following items, a pair of sentences are given in which the keywords have been underlined. Identify the sentences in which the underlined words have been used correctly in the context and make your choice using the code that. अब कहना है क्या कि वो जो वर्ड यूज़ किया है, अंडरलाइन वर्ड्स जो है, आपको वो सेंटेंस में दिया है, आपको देखना है कि करेक्टली वो मैच हो भी रहे हैं वहाँ पर या फिर नहीं. ठीक है. तो इन स्पाइट द कोल्ड he decided to climb the mountain top. नहीं. Despite of the warning, she was determined to swim the entire distance. No. तो 1 and 2 ये both नहीं है, तो neither 1 nor 2. Answer is delta. Next, the issue of human right is imminent in the constitution of most countries. अब बताओ इसका. The issues of human right is imminent in the constitution of most countries. The second क्या, they invited an eminent person as the chief guest. चलो बताइए क्या हो सकता है. एक दिया है imminent, एक दिया imminent. ओके. इमिनेंट दिया और एक होता है इमिनेंट और एक होता है एमिनेंट. ठीक है. वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन. ठीक है. और एक होता है एमिनेंट, इसका मतलब होता है फेमस. ओके. अब ट्राई करो. द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट इज इमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज. They invited an eminent person as the chief guest for the event. तो ये तो नहीं है. Answer is alpha. Next, among those who had applied for the job, I found 4 candidates to be outstanding. Okay. Among और 4 candidate है मतलब 2 से ज़्यादा है, means it is right. Among यहाँ पर है मतलब ये तो right है. Amidst the confusion caused by the melee, the perpetrator slipped away. तो इसका दोनों right. So answer is Charlie. Okay. Next, they will soon be applying for the permission. They shall be pleased with the arrangement made by us. अब यहाँ पर अंडरलाइन करना भूल गए हमारे सर. अब देखते ये क्या है. So the question is related. ओके. तो यहाँ पर विल को अंडरलाइन किए और शाल को. ओके. विल एंड शाल, दिस बोथ द वर्ड्स आर अंडरलाइन. पहला क्या है, विल और दूसरा शाल. दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन. दे शाल बी प्लीज विद द अरेंजमेंट मेड बाय अस. तो यहाँ पर दोनों राइट. ठीक है. आंसर इज सी. Both are right. So answer is C. Next, you have been frivolous whereas I have been serious. The difficulties seem अच्छा यहाँ पर again they have not underlined. I'll do it for you, don't worry. हो जाता है कभी कभी printing mistake, it's fine. तो यहाँ पर इन्होंने nevertheless और whereas नेवरदलेस एंड वेरएस को अंडरलाइन करके दिया. ठीक है. अब देखते. यू हैव बीन फ्रिवलस वेरएज आई हैव बीन सीरियस. द डिफिकल्टीज सीम इनसरमाउंटेबल. नेवरदलेस द करेज टू कैरी ऑन वॉज अनडाउंटेड. अब ये दोनों राइट. ठीक है. आंसर इज सी. नेक्स्ट. अच्छा, ये जो ऑप्शन दिया था, एक तो गेम का नाम दिया था और उसका कहाँ पर खेलते हैं ये. ठीक है. कहाँ पर ये खेलते हैं मतलब अरीना कहाँ पर खेलते हैं उसको मैच करना था आपको. ओके. तो देखते हैं पहले. गोल्फ क्या रहेगा. गोल्फ क्या दिए 3 और 1. कोर्स या फिर कोर्ट में तो नहीं होता है. गोल्फ तो कोर्स में रहता है. ठीक है. मतलब ये 2 ऑप्शन है साइड में निकल गए. मतलब ये तो निकल ही गया पूरी तरह से. दिस अल्फा एंड ब्राउ और अल्फा में से सिलेक्ट करना है. राइट. अब क्रिकेट कहाँ पर रहता है भाई. वो तो पिच पे रहता है तो दैट इज राइट. क्रिकेट इज ऑन पिच. पोलो के लिए तो सीधा आपका क्या रहता है, ग्राउंड रहता है.
और टेनिस के लिए कोर्ट रहता है, ठीक है। तो फिर ए का 3 हाँ है, बी का 2, मतलब अल्फा इज योर आंसर, सो आंसर इज अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट ओके, एक क्वेश्चन भी आया था, पिच क्यूरेटर, हमारी फर्स्ट पिच क्यूरेटर बनी आईपीएल की, उसका नाम कुछ तो के से था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। तो आप उस क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते थे, क्योंकि इन्हीं दोनों दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता होगा कि क्रिकेट तो पिच क्यूरेटर हमारी पहली बनी है, तो ब्राउ का सीधा सीधा पिच था आगे। अगेन इफ यू हैव रेड अबाउट दैट करंट, वो भी मैटर करता है। ओके अब देखते हैं एनिमल और उनका साउंड, ठीक है। एनिमल और उनका साउंड, डॉल्फिन कैसे करती है? डॉल्फिन क्लिक क्लिक करती है, ओके, डॉल्फिन डू क्लिक क्लिक। एलिफेंट ट्रम्पेट, उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ जी। फिर होता है मंकी, मंकी कैसे करता है? चैटर, ऑफ कोर्स चैटर करता है मंकी, ओके, मंकी चैटर्स। और चीता क्या करता है? चीता आपका चर्प करता है। सो आंसर क्या है? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये कहाँ पर है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो आंसर इज 4। ओके नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके, एनिमल एंड ग्रुपिंग। अब इनके ग्रुप जो होते कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव प्रोनाउन में ही आता है ये, ठीक है। तो मैं फटाफट बता देती हूँ। फिश का स्कूल ऑफ दिया है, ओके, तो स्कूल ऑफ फिश। डक का क्या है हमारा? पैडलिंग, डक पैडल करती है ना, ओके। तो आंट्स, आंट्स का तो बस कॉलोनी है, उसमें कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए थी, और ये बस, तो आंसर इज ब्राउ। क्लियर? नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, क्लम ऑफ, बंच ऑफ, स्टेक ऑफ, बंडल ऑफ। अब ये तो इजी था, अब इसमें भी अगर किसी ने गलती कर दिया हो तो बस धन्य हो। क्लम्प ऑफ ग्रास, बंच ऑफ फ्लावर, स्टैक ऑफ फायरवुड और बंडल ऑफ क्लोथ्स। तो ऐसे दिख रहा है 4 हाँ 3, आंसर इज डेल्टा, सो आंसर इज योर डेल्टा। क्लियर? नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। स्विमिंग, स्विमिंग का बटरफ्लाई होता है, पता है ना, उसमें स्टाइल रहता है बटरफ्लाई, ओके, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको 2 के, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? बी ब्राउ का 3rd और 4th, खो खो, खो खो का चेसर, और दूसरा ऑप्शन इज एंक, ऑफ कोर्स इट इज चेसर, एक ही ऑप्शन, तो आंसर इज डेल्टा, ठीक है, आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, अब ये है आपको इन द फॉलोइंग आइटम्स 2 sentences आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली combines both the sentence into one sentence and mark your response accordingly, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका उस हिसाब से मार्क करना है, ठीक है। ओके क्लियर? चलो, तो he was adamant about refusing the honor bestowed upon him. He did not trust the credential of the organization that intended to recognize his contribution. अब इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट, he undertook the difficult task, he did so albeit the fact that he did not have any spare time. इसका आंसर था अल्फा। Next, I have told about our expertise, right? They are our expertise, they have been teaching since they have good experience, they have like 10 14 19 years of experience। मैंने आपको जैसे कहा था कि यहाँ पर जो भी आपके डाउट रह गए सारे क्लियर होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली 1 or 2 hours lecture, it's all about the complete day they gave to you, the complete doubt sessions are kept for you all guys, okay? He wrote exam with the utmost confidence, he was grossly underprepared for the examination, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट, he pledged to donate his body part, he was himself the beneficiary transplantation of organ। इसका आंसर है अल्फा। नेक्स्ट, he was adamant to undertake the journey to the hill he had promised to visit his school। अब इसका आंसर है अल्फा, ओके। नेक्स्ट,
In the following items, a sentence is given with one or more underlined word from the option provided. Mark the correct answer from among Alpha, Bravo and Charlie, which is the most appropriate improvement over the word. ठीक है, तो आपको क्या करना है इसका, अगेन इट इज रिलेटेड टू राइट वर्ड, इसकी जगह पर क्या हो सकता है, द सिमिलर mishaps are continuously happening on the new highways because of improper signaling. अब इसमें क्या है, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इम्प्रूव, अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, उसकी जगह मोस्ट अप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट ओवर द वर्ड. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैनिफेस्टिंग इज द आंसर, तो आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन circumnavigated around the Dal Lake with visible, अच्छा ये दोनों अंडरलाइन है, circumnavigated around the Dal Lake with visible delight during their visit to Srinagar. Whenever we are talking about circumnavigated, उसके बाद कोई भी प्रोनाउन प्रपोजिशन नहीं लगता है, तो बस प्रपोजिशन नहीं लगता तो आंसर आपका चार्ली है. ओके, वहाँ पर प्रपोजिशन दिया है, अबाउ अराउंड जो है वो प्रपोजिशन दिया है, ठीक है. The principal of the school assembled the student and emphasized the importance of, कोई improvement नहीं है यहाँ पर, right है. Okay, next, the group was accused of biased participation in the discussion because their entire attention was centered around there. अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर no improvement रहेगा. Okay, next, he claimed that he was merely an uninterested participant in the negotiation. तो इसका आंसर है अल्फा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको फिर से, इन द फॉलोइंग आइटम यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वॉइस ऑफ द गिवन फ्रेज एंड मेक योर रिस्पॉन्स. अच्छा, यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ. एक्टिव टू पैसिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहता है दैट इज द डूअर ऑफ योर सेंटेंस, राइट, डूअर ऑफ द एक्शन, एंड जिसके ऊपर एक्शन हो रही है दैट इज योर ऑब्जेक्ट. अब अगर बोल रहे सब्जेक्ट एक्टिव टू पैसिव करना है तो आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर आपको पैसिव करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो रहता है इट विल प्ले अ रोल ऑफ सब्जेक्ट. क्लियर, ऐसे रहता है. ओके, तो चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. एक्टिव टू पैसिव बोला है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड नहीं होगा, एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड नहीं होगा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स नहीं होगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. ओके, सो आंसर इज डेल्टा. नेक्स्ट, change from active to passive voice. Shut the door. The door is to be shut. नहीं, let the door be shut. Answer is brown. Next, change from passive to active. अभी जो देखे तो active to passive थे. Now this is passive to active. Sujata was advised by her mother to carry an umbrella while stepping out into the rain. अब बताइए इसका आंसर. Her mother advised. सुजाता तो नहीं होगी, द मदर एडवाइस तो नहीं होगी. ठीक है, नो चेंज. ओके, सो आंसर इज अल्फा. ओके, नेक्स्ट, चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव. अगेन क्वेश्चन इज ही वाज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर. ठीक है, दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर, दे सेड ही वाज. ये आंसर पास्ट में, सो ब्राउ. एंड लास्ट क्वेश्चन इज चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव. हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल. ठीक है, अ प्रोफेशनल विल कट नहीं है, नहीं होगा. प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर. हाँ, सो आंसर इज ब्राउन. क्लियर, this is how we have completed all 120 questions, and we have first completed from question number 1 till 60 in part 1 and from question number 61 till 120 in part 2. ठीक है, वैसे हमने पूरे 120 questions ख़त्म कर दिए. अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ पिन डाउन योर मैसेज इन कमेंट सेशन. और कोई भी डाउट हो यू कैन कॉल, नंबर इज गिवन ओवर देयर इन दी डेटाबेस. वहाँ पर जो है वहाँ पर आपका नंबर दिखा है. एंड कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, यू आर जस्ट सपोज टू आस्क इट. इफ़ मैं हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे ही दूँगी. ठीक है, एंड हमने इसी तरह पूरा सीरियस. प्लीज़ चेक करो आपका मार्क्स कितना है. कमेंट सेशन में राइट डाउन योर मार्क्स सो दैट विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द मेरिट. क्लियर, and this is how. Stay tuned till the next lecture. Jai Hind.